सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ जो ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੇਸਿਕ। ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬੇਸਿਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਕੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ, ਇੰਟਰਾਨੈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਟਰਾਨੈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਸਮਾਰਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਗਲੋਬਲੀ ਮਤਲਬ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਗਲੋਬ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਇਹ ਰਾਊਟਰ ਤੇ ਸਰਕਿਟਸ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਟਵਰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਦੂਜੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੂਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੂਲਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੂਲਸ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ TCP/IP ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕ OSI ਮਾਡਲ। OSI ਮਾਡਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਕੰਸੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ OSI ਮਾਡਲ ਇੱਕ ਥਿਓਰਟੀਕਲ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ TCP/IP ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ TCP/IP ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਸ 'ਚ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਿਵੇਂ ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ, ਮੋਡਮ, ਫਾਇਰਵਾਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਨੈਟਵਰਕ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਡੇਟਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਡਿਵਾਈਸ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਾਲ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ ਬਟ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪੈਕ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪੈਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੈਟ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਉਹੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਟਸਐਪ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀਪਲਸ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਯਾਹੂ, ਗੂਗਲ ਪਲੱਸ, ਫਲਿੱਕਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਸੋਰਸ ਇਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟਲੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, COVID-19 ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੂਵੀ ਥੀਏਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਪਏ ਹੈ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਸ ਬੰਦ ਪਏ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੰਟਰਨੈਟ एंटरटेनमेंट का सोर्स की हो गया ऑनलाइन। नैटफ्लिक्स, हॉटस्टार, हर चैनल की अपनी अपनी एक ऐप है, तुसी वो डाउनलोड करो तो उत्थे बैठ के तुसी ईजीली कोई भी प्रोग्राम देख सकते हो। ऑनलाइन गेम्स खेड सकते हो, गाने सुन सकते हो, यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो, टैलीविजन देख सकते हो, और इसके अलावा मूवीज़ देख सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है सिर्फ एक चीज़ करके, इंटरनेट करके। ऑनलाइन सिर्फ यही नहीं है कि जे तुसी बाहर नहीं जा सकते तो तुसी ऑनलाइन समान खरीद सकते हो, अपना डाटा किसी नाल शेयर कर सकते हो, अपनी फोटोग्राफ्स अपना व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, मेल आईडी ते शेयर कर सकते हो। ऑनलाइन बैठे बैठे घरे बैठे बैठे तुसी बिजली का बिल, पानी का बिल, फोन रिचार्ज ये सारे काम कर सकते हो, किसी भी तरह की पेमेंट कर सकते हो। ईवन बिजनेस भी तुसी ऑनलाइन कर सकते हो। लोगों ने अपने बिजनेस लिए अपने ਐਪਸ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ OLX ਉਹ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, एंटरटेनमेंट ऑनलाइन, जिमें अजकल क्लासेस भी ऑनलाइन ही लग रही हैं। एक वीडियो लैक्चर यूट्यूब का एक खुद एक एग्जाम्पल है बहुत बड़ा, जिहड़ा एडवांटेज है इंटरनेट का, जिहड़े एजुकेशन नूं प्रमोट कर रहा हैगा ऑनलाइन। डिसएडवांटेज, जिथे कुछ एडवांटेजेस हुंदे आ उत्थे डिसएडवांटेज जरूर हुंदे आ। एक डिसएडवांटेज जिहड़ा मेजर इंटरनेट का है वो हैगा कि तुहाडी इन्फॉर्मेशन का मिसयूज होने के चांसेस है। ਹੁਣ अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, आप कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, आप कार्ड नंबर पाने हैं, एक्सपायरी डेट पाने हैं, CVV नंबर पाने हैं, मतलब कार्ड की सारी डिटेल पाने आप। कई जने फास्टर ਉਹਦੇ ਲਈ कार्ड ਨੂੰ सेव भी कर ਦਿੰਦੇ हैं। कई एप्लीकेशनस एवें ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ कि ਤੁਸੀਂ अपने कॉन्टैक्ट डिटेल दोगे ਤਾਂ ही ऐप एक्सेसिबल है, मतलब वो ਤੁਹਾਡੇ सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रख रहे हैं। अगर वो चाहन ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਕਾਫੀ ਫਰॉड्स भी ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰਡ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਅੱਗੇ ਡਾਟਾ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਰॉड ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਸਟਮਰਸ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ स्पैम कॉल्स आउंदियां सीगियां, रैंडम कॉल्स आउंदियां सी ते उन्हां दी इन्फॉर्मेशन लीक आउट हो जाती सी। अनदर डिसएडवांटेज स्पैम हैगा। स्पैम तुसी देख लो, तुहाडे जीमेल ID जे किसी ने बनाई है तो उहदे विच एक फोल्डर ही हुंदा है स्पैम दा, जिथे तुसी अगर तुसी मान लो मैं एक पेज लिंक्डइन दा लाइक किया, Quora दा पेज लाइक किया, जो भी न्यूज़ अपडेट्स है, या मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का पेज लाइक करता, जो भी डेली दी अपडेट्स है वो मैनू जीमेल ते आउंदी रहनगी, वैदर आई वांट इट और नॉट, चाहे मैनू चाहिए कि नहीं। वो मेल्स इन्नियां ज़्यादा हो जांदियां कि ऑफिशियल मेल्स जिहड़ियां जरूरी मेल्स है कई बार वो मिस हो जाती है। इस चीज़ नू कहा जाता है स्पैमिंग। वायरस एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, जिमें रीसाइकल बिन का एक हैगा वायरस या शॉर्टकट एक एवें दा वायरस है जो कि करदा तुहाडी फाइल, जो भी तुसी पेन ड्राइव कनैक्ट करोगे, स्टोरेज डिवाइस कनैक्ट करोगे, वो तुहाडी सारी फाइल्स का जिहड़ा डाटा, जिहड़ी फाइल्स तुहाडे स्टोरेज डिवाइस च प्रेजेंट है, उन्होंने सारी फाइल्स नू शॉर्टकट बना दिंदा गा, ओरिजिनल फाइल्स नू हाइड कर दिंदा गा या क्रैश कर दिंदा गा। ਇਹਦਾ मतलब इंपॉर्टेंट डाटा लॉस होने के चांसेस है। वायरस एक एवें दी चीज़ है जिहड़ी क्रिएट की जाती है ताकि किसी होर दे कंप्यूटर का डाटा डिस्ट्रॉय कर सके। जिवें आपां देखते हैं कि 10,000 रुपये कमाओ, इस लिंक पे क्लिक करो एक दिन दे विच, ते आपां नूं लगदा कि शायद ये पॉसिबल है, आपां क्लिक कर लैंदे हैं। उस क्लिक दे उपर वो एक तरह का स्पैमवेयर हुंदा गा, एक तरह का छलावा हुंदा गा, जिहड़ा क्लिक करदे भी वायरस अपने कंप्यूटर च एंटर कर जांदा है। मतलब तुसीं उत्ते क्लिक करदे हो पर पिछे जिहड़ी कोडिंग हुंदी है वो उत्थे लिखिया हुंदा है क्लिक हेयर टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन और ओके। तो आपां तुसीं ये मान लो आपां उन्हां नूं अलाउ कर रहे क्लिक करके कि हाँ तुसीं मेरे कंप्यूटर दे अंदर आके मेरा डाटा डिस्ट्रॉय कर सकते हो।
अनदर जिहड़ा बहुत वड्डा डिसएडवांटेज है इंटरनेट का वो है पोर्नोग्राफी का बच्चों के, क्योंकि इन्ना ईजीली एक्सैसिबल हो चुकी है पोर्नोग्राफी कि छोटे छोटे बच्चों ते जो उम्र उन्होंने इन्हां चीज़ों को देखने की नहीं हैगियां उन्होंने इन्ना मैंटल इस चीज़ का गलत इफेक्ट पैंदा है कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते अपने सही पाथ तो। ये अलावा बहुत सारे होर तरीके के मिसकनसैप्शनस हैगे है या साइबर क्राइम ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इंटरनेट, जिमें आप साइबर बुली कहने ऑनलाइन जो तुसी अपनी फोटो पाई है तो वो उपर कॉमेंट्स इन्ने कोई भी कॉमेंट कर सकता है या कोई भी तुहाडी फोटो सेव कर सकता है, तो ये सारी डिसएडवांटेज हैगी इंटरनेट के। तो जदों भी तुसी इंटरनेट में यूज़ करो हमेशा केयरफुली यूज़ करना चाहिए, उही इनफॉर्मेशन शेयर करो जिहड़ी तुहानूं लगदी है कि तुहाडे लई बाद चों जाके हार्मफुल नहीं होगी। पर्सनल इनफॉर्मेशन का थ्रेट हो जाता है, स्पैमिंग है, साइबर क्राइम है, वायरस अटैक्स है, ये सारे डिफरेंट तरह के डिसएडवांटेज ने इंटरनेट के। अगे आप कुछ बहुत ही बेसिक तरीके दियां सर्विसेज पढ़ांगे। इंटरनेट बहुत ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करता है, आप बस कुछ ही इत्थे पढ़न वाले हैं। सब तो पहला सब तो ईजी जिहड़ा सब अजकल मैनूं लगदा हर कोई यूज़ कर ही रहा है वो हैगी है ईमेल चाहे तुसी जीमेल आईडी ते बना लो, गूगल ते बना लो, जीमेल ते बना लो, चाहे तुसी याहू ते बना लो, चाहे आउटलुक ते बना लो। ये सारे डिफरेंट तरीके ने मेल सेंड करन दे। टेलनेट हुंदा है कि काफ़ी ऑफिसिस च एवें हुंदा है कि एक जगह बैठ के तुसी अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड भरोगे तो तुहानूं किते होर दा एक्सैस मिल जाता है, किसी होर कंप्यूटर का एक्सैस मिल जाता है। टीम वीवर भी एक सॉफ्टवेयर है जिहदे नाल तुसी एक जगह ते बैठ के दूसरे कंप्यूटर नूं एक्सैस कर सकते हो, और ये हुंदा किहड़े प्रोटोकॉल के थ्रू है, टेलनेट प्रोटोकॉल के थ्रू। एवें ही FTP मतलब जदों भी तुसी कोई भी फाइल ट्रांसमिट करनी है एक कंप्यूटर तो दूसरे कंप्यूटर तक, उहदे लई कुछ रूल्स बने हुए है। FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल नूं जदों भी तुसी एक जगह तो दूसरी जगह भेजोगे अपने आप पिछे एक प्रोटोकॉल काम करता है जिन्हों कहने हैं FTP प्रोटोकॉल। एक तरह की सर्विस है जिहड़ा इंटरनेट अपने आप प्रोवाइड करता है, आपां उह तों नहीं मंगण दी लोड़ हैगी, वो ऑटोमैटिकली काम करता है। यूज़नेट न्यूज़ एक तरह का तुसी कह लो न्यूज़ या बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन, जिमें क्वारा हैगे है एक साइट हैगी है, गीक्स फॉर गीक्स है, ये बहुत सारे तरीके की वैबसाइट्स ने जिहदे ऊपर डिस्कशनस चलते रहंदे है कंटीन्यूअसली। और तुसी ये भी कह सकते हो पॉडकास्ट हुंदे है या ऑनलाइन टाइम्स ऑफ इंडिया या हर अजकल का न्यूज़पेपर ने अपनी एक बनाई हुई है जिथे तुसी न्यूज़ सुन सकते हो या अपना डिस्कशन कर सकते हो, किसी भी टॉपिक के ऊपर अपने व्यूज़ दे सकते हो। वर्ल्ड वाइड वैब यानी कि WWW यानी कि तुसी कोई भी वैबसाइट क्रिएट कर सकते हो अपने लिए, पर्सनल यूज़ लिए, बिजनेस लिए, या कोई भी वैबसाइट नूं एक्सेस करन लई यूज़ करन लई तुहानूं सब तो पहला की यूज़ करना पैंदा है WWW विच मीनस वर्ल्ड वाइड वैब। किसी भी वैबसाइट नूं क्रिएट करके यूज़ करन लई ये सब तो इंपॉर्टेंट सर्विस है जिहड़ी इंटरनेट प्रोवाइड करदा है आपां नूं। हाले तक आपां इंटरनेट बारे पढ़ रहे हैं। इंटरनेट जिहड़ा घर दे अंदर भी हो सकता है, गली च भी हो सकता है, सिटी च भी हो सकता है, कंट्री च भी हो सकता है, ते कॉन्टीनेंट च भी हो सकता है। मतलब वो पूरी दुनिया नूं कनैक्ट करदा है। इंटरनेट एक प्राइवेट नेटवर्क हुंदा है जो सिर्फ ते सिर्फ किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग या ऑर्गेनाइजेशन या कैंपस दे अंदर हुंदा है, ते वो बहुत सिक्योर हुंदा है, ते उन्होंने सिर्फ जिहड़े डिवाइसिस कनैक्टेड है उही आपस च गलबात कर सकते हैं। कोई बाहरों इंटरनेट कनैक्शन उन्होंने नहीं मिलता। इंटरनेट हुंदा है विद इन एरिया, स्पैसीफाइड एरिया, प्राइवेट नेटवर्क जिहड़ा क्रिएट हुंदा है। इत्थे मल्टीपल सिस्टम्स एक दूजे नाल नैटवर्क हुंदे आ, मतलब एक दूजे नूं ट्रांसफर कर सकते हैं,
बट कोई बाहरों सिस्टम कनैक्ट नहीं हुंदा, बाहर वाली दुनिया नाल उहदा कोई कनैक्शन नहीं हुंदा। तुसीं इस डायग्राम च देख सकदे हो सारे सिस्टम एक दूजे नाल कनैक्टेड ने, पर ये बाहर जे तुसीं कहोगे कि कोई कम्युनिकेशन हो जूगा, नहीं। जेड़ा भी इस सर्वर ने अलाउ किया होना उही कम्युनिकेशन ये आपस च कर सकते ने, और किहदे थ्रू कर सकते हैं, सर्वर के थ्रू हो सकता है। बाहरों इहदा कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। इहदा सब तो बड़ा बेनीफिट हुंदा है कि इह सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हुंदी है, कोई वायरस अटैक होने के चांसेस नहीं होंगे, क्योंकि बाहरों आपां इंटरनेट किसी होर नाल कनैक्ट कर ही नहीं रहे। इंटरनेट ते इंटरनेट दे विच की डिफरेंस है? इंट्रानेट हुंदा लोकल विद इन कोई छोटा जिहा प्राइवेट नैटवर्क, ते इंटरनेट पूरी दुनिया नूं कनैक्ट करदा हैगा। इत्थे आपां इंटरनेट एक्सैस करते हैं, इत्थे अपने कोले इंटरनेट का एक्सैस नहीं हुंदा। ये बहुत एक्सपेंसिव है। जे तुसी प्राइवेट नैटवर्क क्रिएट करना है ना, सिक्योर नैटवर्क क्रिएट करना है, तो उहदे लई काफ़ी सॉफ्टवेयर्स या एवें दी चीज़ां तुहानूं इंप्लीमेंट करनियां पैंदियां जिहड़ियां कि एक्सपेंसिव हुंदियां। इंटरनेट तुहानूं पता है अजकल एक 40 रुपए का रीचार्ज भी इंटरनेट नूं एक्सैस करन च मदद करदा, मतलब इन्ना सस्ता हैगा ये। इहदे लई तुहानूं प्रॉपर सॉफ्टवेयर्स, महंगे सॉफ्टवेयर्स बाय करने पैंदे है जो तुहाडे सिस्टम नूं सिक्योर करन, ताकि एक प्राइवेट नैटवर्क क्रिएट हो सके, जिहड़ा कि बहुत एक्सपेंसिव हुंदे है। ओबवियसली जे सिक्योर हैगा, जे प्राइवेट है तो ओबवियसली ज़्यादा सेफ होगा। जिन्ना ईजीली तुसी कनैक्ट हो सकते हैं पूरी दुनिया नाल, उन्ना ईजीली तुहाडे ते कोई हार्म कर सकदा है। इसदा मतलब ये लैस सेफ है। ये रिलायबल घट है, मोर रिलायबल है, क्योंकि प्राइवेट है। कोई भी चीज़ डिसकनैक्ट होंदे या किसी भी होर चीज़ ते तुसी डिपेंड नहीं हो, तुसी अपने ही नैटवर्क ते डिपेंड हो, तो कोई भी चीज़, कोई भी प्रॉब्लम आने के चांसेस घट है, क्योंकि कनैक्टिविटी थोड़ी है। इत्थे कनैक्टिविटी ज़्यादा है, प्रॉब्लम आने के चांसेस ज़्यादा है। तुसी इंटरनेट लई किसी होर सर्विस प्रोवाइडर ते डिपेंड करते हो, इसलिए रिलायबिलिटी घट है। एक्सट्रानेट तुसी कुछ कह लो विच विचाले जे है इंटरनेट ते इंट्रानेट दे। इहदे च की हुंदा है कि आपां एक जिहड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना एक नैटवर्क यूज़ कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन अपने अंदर एक नैटवर्क यूज़ कर रही है, बट उन्होंने बाहर भी अपने क्लाइंट हैगे है जिहड़े कि ऑर्गेनाइजेशन दे अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। उन्हां नाल जदों कनैक्ट करना है उदों नूं इंटरनेट की लोड़ पैंदी है। ਇਹਦਾ मतलब की है कॉम्बीनेशन है, इत्थे इंटरनेट यूज़ कर रही है, अंदर वो इंट्रानेट यूज़ कर रही है, पर इंटरनेट नूं वो फायरवॉल के थ्रू कनैक्ट करती है कंपनी दे नाल। फायरवॉल की करता है कि वही डाटा अपने नैटवर्क दे विच आउण नूं अलाउ करता है, जिहड़ा डाटा वो समझदा है सही है, करैक्ट है, चैक करता है। फायरवॉल्स एज कंपनीज की काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगी है, और ये इंटरनेट नाल इसीलिए कनैक्टेड होंगे है ताकि वो अपने क्लाइंट्स नाल गलबात कर सकन। इसलिए ये सब तो ज़्यादा कॉमनली यूज्ड तुसी ये कह लो नैटवर्क है एक्सट्रानेट, जिहड़ा कि कॉम्बीनेशन है इंट्रानेट ते इंटरनेट दोनों का। एक्सटर्नल एक्सैस हुंदा है, इंट्रानेट दे विच एक्सटर्नल एक्सैस नहीं हुंदा, सिर्फ जिन्ने सिस्टम कनैक्टेड है वही हुंदे है। एक्सट्रानेट मैं तुहानूं दस ही दिता, इंटरनेट तो वध के है थोड़ा, इह च लिमिटेड हुंदा गा। ये सिर्फ इसीलिए एक्सटर्नल कम्युनिकेशन करता है ताकि अपने कस्टमर, क्लाइंट्स, बिजनेस पार्टनर इन्हां नाल कम्युनिकेट कर सके। ये बाहर कोई कम्युनिकेशन करता ही नहीं, कंपनी के अंदर ही कम्युनिकेशन रहिंदा है। अज का टॉपिक इत्थे ही कंप्लीट हुंदा है। थैंक यू।